So, good morning, students. We are studying unit number 5 of the subject manufacturing process. So far, we have studied turning operations, milling operations, and grinding operations. In this lecture, we will see the shipping operations. So, lathe machine, milling machine, grinding machines are different types of machines or machine tools on which some machining operations are performed. Another machining operations which we have to study is the shaping operation. In shaping, we produce a flat surface. That surface can be either horizontal, vertical, or at an angle also. We are able to machine a contoured surface also using form cutters and by suitably manipulating the position of the workpiece in relation to the cutting tool. ठीक है ना? If we want to produce a flat surface, then we can machine that surface using milling operations also. But the simple uh, operation performed for performing that shaping operation is that surface machining operation is the shaping operation. ठीक है ना? हम चाहें तो फ्लैट सरफेस मिलिंग मशीन पर बना सकते हैं, चाहे तो उसको शेपिंग मशीन पर भी मशीन कर सकते हैं. जो सिंपल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होता है वो शेपिंग मशीन का होता है. So first of all, see this two-dimensional figure. Here, this is the tool which is mounted in inverted position. It is mounted upside down. ठीक है ना? It is having cutting edge at this position, and this is a single point cutting tool, like the tool which was used for turning operation or on the milling machine. This is the workpiece, a cuboid workpiece. You can see some machining has been shown here, and this is the chip generated during the machining. This much portion of this workpiece has been machined. You can see 4 directions in this workpiece marked as A, B, C, and D. Here it is written that A is the cutting motion. So we have already studied that cutting motion is the motion which is responsible for the cutting or machining. This motion is also known as primary motion or cutting motion. Okay. And when this tool is moving in this direction, then it is cutting. And when this is moving in this direction, then it is written here. So A is the cutting motion and B is the return motion. When tool moves in the direction of A, then it removes some amount of material from the workpiece. And this basically this is known as a stroke, and this is considered as the forward stroke in the shaping operation. Okay. Since the tool is having reciprocating motion in this case, so once the tool has moved to its this much right this much extreme position, then it has to return back to take the next stroke also. So tool has to move in return direction also. So it has both forward and return motion, and we can say that tool is having a reciprocating motion. So while performing operations of finishing or machining on shaping machine, a tool is having a reciprocating motion. In a machining operation, apart from cutting motion, secondary motion is also important, which is considered as or known as feed motion. So in this case, you can see this arrow, which is marked as C. C is the feed motion, and feed is provided to the workpiece for performing shaping operation. That means primary motion or cutting motion for performing shaping operation is the cutting tool is with the cutting tool, whereas feed motion is with the workpiece. Okay. So but one thing you have to remember, that this tool can machine this workpiece in forward movement motion also, when it is moving from this direction to this direction. It cannot perform the machining operation when it is moving in
return stroke or return direction, because this is having cutting edge at this place only. So machining is possible when it is moving from moving in this direction also. So before moving further, I would like to show you one video of the shaping operation. This is from internet, YouTube. I have taken it. Here you can see the cutting tool mounted in inverted position. It is having a reciprocating motion. The workpiece is mounted using suitable work welding device on the table of the uh, shaping machine. You can see chips being removed or cut during the operation. Since the nature of the cutting is intermittent, tool performs machining operation when it is moving in this direction only. It does not perform machining operation when it is returning. Okay? So you can see the horizontal shaper in this case. This part of the machine is known as ram. On the front portion of the ram is tool post or tool is mounted in this tool assembly. It is mounted in inverted position. It is having cutting edge on this side only, and it can perform machining operation on the workpiece. So when it has reciprocating motion during forward stroke, it performs machining, and during return stroke, it remains idle. Now there are chances when this workpiece moves and this cutting tool moves in return stroke, then there are chances that it may rub or touch the machine surface also. So one thing is done in this case: when this tool is moving in return stroke, or after performing the cutting stroke, it moves in return direction, then this workpiece moves in this direction, and that is cross motion or feed motion provided to the workpiece. ठीक है ना? Here you can see the type of chips generated. Since the nature of cutting is intermittent, that's why discontinuous types of chips are produced while uh, performing shipping operations. ठीक है ना? This operation you can compare with milling machine also, where nature of the cutting is discontinuous, intermittent. That's why, like milling operation, discontinuous chips are also produced in this case. But in case of milling, we use a multi-point cutting tool. But in this case, we are using a single point cutting tool. Okay, and we are generating a flat surface. There are certain machines also. In this machine, we are having the motion edge in a horizontal plane. There are certain machines which is having in vertical plane also. So this is a horizontal shaper. If this cutting tool moves in vertical direction to perform the machining operation, then it is known as a vertical shaper or a slaughter. Okay. So shaping is defined as the process of removing metal from a surface in horizontal, vertical, and inclined position to produce a flat or plane surface. We can produce a flat surface. That surface may lie in horizontal and vertical, or at vertical direction, or at an angle also. And the tool is having reciprocating motion. Okay, so the relative motion between the tool and the workpiece is the relative motion. The primary motion in case of shaping is the reciprocating motion of the cutting tool, and feed motion is the cross motion of the workpiece. ठीक है? अब इसमें एक चांसेस होते हैं, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि when this tool moves in forward direction, then the relative motion between the workpiece and the cutting tool should be such that it should act as a rigid body. That's why it will be able to cut the excess amount of material from this workpiece in the form of chips. But what happens when this moves in return stroke? Then there are chances that it may touch or it may slide from the surface, from the machine surface also. ठीक है ना? So there are chances of deteriorating of the surface generated. For that purpose, one arrangement is done that this cutting tool acts as a hinged body. बेसिकली यहाँ पे जिस डिवाइस में माउंट होता है, जिसको टूल हेड अपन बोलेंगे, उसमें क्लैपर बॉक्स रहता है. क्लैपर बॉक्स के अंदर ये माउंट होता है. तो अरेंजमेंट यहाँ पे इस प्रकार का होता है कि जब ये वर्क कटिंग टूल कटिंग स्ट्रोक के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करता है, उस केस में
ये कटिंग टूल एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करता है, लेकिन जब ये रिटर्न स्ट्रोक के लिए जाता है उस केस में ये हिंज्ड हो जाता है और ये सिंपली अनकट पोर्शन पर टच होते हुए पीछे की तरफ आ जाता है। उससे क्या होता है, जो मशीन्ड सरफेस है उसको भी कोई नुकसान नहीं होता, उसको कोई डैमेज नहीं होता है। तो ये जो कटिंग टूल है, इट एक्ट्स एज अ rigid body when it moves in forward stroke, but it acts as a hinged body when it moves in return stroke also. Now how we can take depth of cut? दो तो आपने देख लिए, प्राइमरी मोशन एंड सेकेंडरी मोशन, कटिंग स्पीड एंड फीड. For taking depth of cut, there are two types of arrangements provided. Either we can lower this cutting tool using the arrangement provided in the tool head, or we can lift this workpiece in upward direction. But mostly in simple cases, we move this cutting tool in downward direction when the uh, machining of this entire surface is over. Okay. One more thing, since this cutting edge is having particular length, it can be 5 mm, 10 mm like that. So in one pass or in one stroke, it can machine a length or width of this workpiece, maximum width of the workpiece as 5 or 10 mm, which is dependent on the length of the cutting edge. Okay. यदि कटिंग एज यहाँ पे 10 mm का है तो 10 mm की मशीनिंग यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन यदि ये वर्कपीस की विड्थ ज़्यादा है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, we have to move it in cross direction, so multiple passes are needed or multiple strokes are needed. अब जो एक फॉरवर्ड स्ट्रोक है और एक रिटर्न स्ट्रोक है वो एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है. क्या कहलाता है? साइकिल. ठीक है ना. वन कटिंग स्ट्रोक एंड वन रिटर्न स्ट्रोक jointly makes a cycle. So number of cycles are needed. However, in a cycle the machining takes place in forward stroke only and no machining takes place in return stroke. Okay. The machine tool used for shaping operation is called shaper. It is used primarily for producing a flat surface which may be in horizontal, vertical or angular plane. It can be used for making slots, grooves and keyways also. ठीक है ना. तो आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया होगा. यदि इनके साथ आपको कोई डाउट है तो अनम्यूट करके आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर फीड मोशन तो सर टूल के जो टूल का मोशन होता है कटिंग करने के टाइम पे, नहीं नहीं नहीं, उसको बोलेंगे ना फीड टूल की मोशन. मोशन नहीं, उसकी नहीं है. टूल की जो मोशन है वो प्राइमरी मोशन है या कटिंग मोशन है. ठीक है ना. ये आगे बढ़ेगा तो कटिंग होगी, इसलिए प्राइमरी मोशन है, कटिंग मोशन है. जब ये वापस जा रहा होता है रिटर्न स्ट्रोक में वी के लिए, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ वापस जा रहा होता है, उस केस में इस वर्क पीस को हल्का सा इस डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं, मूव कर देते हैं 1 mm 2 mm. तो ये जो मोशन है वर्क पीस की क्रॉस मोशन, ये कहलाती है फीड मोशन. और डेप्थ ऑफ कट हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो इस टूल को डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं डेप्थ ऑफ कट लेने के लिए, या इस वर्क पीस को ऊपर किया जा सकता है. तो जब हम सरफेस की मशीनिंग करने जा रहे होते हैं तो वो काम एक बार किया जाता है, फिर हम नंबर ऑफ स्ट्रोक्स यहाँ पर लेते हैं. जब पूरी की पूरी सरफेस मशीन हो जाती है तो हम दोबारा डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं यदि आवश्यकता होती है तो. ठीक है. और कोई डाउट? नो सर. ठीक है, आगे चलते हैं अपन. Working principle. Job is rigidly fixed on the machine table. Single point cutting tool held properly in the tool post or clapper box is mounted on a reciprocating arm. RAM, not arm, reciprocating RAM. क्योंकि रैम रेसिप्रोकेट करता है, फोर्स अप्लाई करता है, इसको रैम बोलते हैं, और रेसिप्रोकेट करता है और रेसिप्रोकेटिंग रैम हो गया. तो उस पर आगे की तरफ हम यहाँ पर लगा देते हैं, टूल हेड लगाते हैं जिसमें टूल पोस्ट होता है, और उसमें वहाँ पर जाके एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन्वर्टेड पोजीशन में या उल्टी पोजीशन में यहाँ पे माउंट किया जाता है. Reciprocating motion of the RAM is obtained by a quick return motion mechanism. This is very, very important. When we talk about shaping machine, then what happens? You can see the previous figure. इस वर्कपीस को कंप्लीट मशीन करने के लिए सपोज इसको 10 कटिंग स्ट्रोक की आवश्यकता है. सही है. मान लो फॉर एन एग्जांपल हमें बोलते हैं कि इस वर्कपीस की सरफेस को मशीन करने के लिए कटिंग टूल के 10 कटिंग स्ट्रोक्स की आवश्यकता होती है. मतलब 10 बार ये इधर से यहाँ आना चाहिए, तब जाके पूरी की पूरी कटिंग हो पाएगी.
तो चूंकि एक कटिंग स्ट्रोक के बाद इसको पुरानी पोजीशन में लौटना पड़ता है, तो इसमें रिटर्न मोशन भी होती है। तो जितने कटिंग स्ट्रोक होते हैं उतने ही रिटर्न स्ट्रोक भी यहाँ पे होते हैं। अब जो जितने कटिंग स्ट्रोक हैं उतमें तो मशीनिंग हो रही होती है, लेकिन जब रिटर्न हो रहा होता है तो उसमें कोई मशीनिंग नहीं हो रही होती है। तो यदि हम जितना टाइम कटिंग में लगाएंगे और उतना टाइम ही रिटर्न में लगाएंगे तो ये टाइम हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि हम ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं जिसकी वजह से टूल मूव होता है और वो टूल रिटर्न मूव होने में कम टाइम लगाता है। आए बात समझ में कि जब ये बी की तरफ मूव हो रहा होगा तो ये कम टाइम लगाएगा, इसलिए इस मोशन को बोलते हैं क्विक रिटर्न। ठीक है, ये मूव होगा इस डायरेक्शन में स्लो स्पीड से और उसके कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट स्पीड से बी की डायरेक्शन में मूव होगा, इसलिए बोला गया है इट रिक्वायर्स अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। द वर्कपीस इज हेल्ड स्टेशनरी ड्यूरिंग कटिंग while the tool reciprocates horizontally. The feed and depth of cut are normally provided by moving the work. अब इसमें लिखा है कि हम फीड भी देता, तो फीड तो यहाँ पे देना ही है वर्क को मूव करके, लेकिन समटाइम्स डेप्थ ऑफ कट भी हम वर्क पीस को ऊपर की तरफ मूव करके दे सकते हैं। ठीक है, as the ram reciprocates, the tool cuts the material during its forward stroke. During return, there is no cutting action, and this stroke is called the idle stroke. Forward and return strokes constitute one operating cycle of the shaper. Okay, primary motion, it is the reciprocating motion of the cutting tool. Secondary motion of feed motion, it is the cross motion of the workpiece. तो यदि आपको इन दोनों स्लाइड में कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया है, वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में नहीं आया, तो अनम्यूट करके आप यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नो डाउट। फीड मोशन में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। देखो फिर से इस फिगर पर फोकस करो, ये अभी यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ बाहर आ गया, इसने पूरी की पूरी मशीनिंग कर दी जितनी कर सकता था इस कटिंग स्ट्रोक में। अब हमको फीड देना है, तो ये टूल क्रॉस में मूव नहीं हो रहा है, टूल तो सिर्फ अपनी जगह रेसिप्रोकेट कर रहा है, जैसे मैंने वीडियो आपको भी दिखाया था, उसमें रैम की रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, तो उसमें उसके आगे लगा हुआ जो कटिंग टूल है उसकी भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। अब ये क्रॉस में मूव नहीं कर सकता यहाँ पे, तो हम क्रॉस में मूवमेंट देने के लिए किसको मूव करते हैं, वर्कपीस को मूव करते हैं, और यही मोशन ही फीड मोशन है। एक बार कटिंग होने के बाद जब ये टूल पीछे की तरफ जाएगा, तब इस वर्कपीस को इस डायरेक्शन में हल्का सा बढ़ा दिया जाएगा, मूव कर दिया जाएगा, और यही मोशन आपकी क्या हो जाएगी, फीड मोशन इन शेपिंग। ठीक है, यस सर। कटिंग टूल के पास सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी मोशन है और फीड मोशन किसके पास है, वर्कपीस के पास है। एनी अदर डाउट? और डेप्थ ऑफ कट करने का तरीका क्या है कि हम टूल को नीचे कर सकते हैं और चाहे तो हम वर्कपीस को भी ऊपर उठा सकते हैं डेप्थ ऑफ कट लेने के लिए। ठीक है, यस सर। now you can see two dimensional figure of a shaping machine which is known as shaper also. Here the important parts are base, it is a casting, ठीक है, which is made up of cast iron, hollow casting होती है जिसके ऊपर जिसके जो ऑपरेटिव एलिमेंट्स वो यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। सेकेंड इज बॉडी विच इज ऑल्सो नोन एज पिलर, फ्रेम और कॉलम। तो यहाँ पे यहाँ जो रखा हुआ है ये इसकी बॉडी है, ठीक है, या फ्रेम है या कॉलम है। एक हॉलो कास्टिंग होती है जिसके अंदर इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, गियरिंग अरेंजमेंट है और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इसके अंदर हाउस की जाती है मतलब वो इसके अंदर माउंट होती है वहां पे। ठीक है, टॉप ऑफ दिस कॉलम और फ्रेम और पिलर यहाँ पे गाइड वेज प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें ये रैम यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर सकता है टू एंड फ्रो डायरेक्शन में। ओके, सो यू कैन सी बेस, देन दिस कॉलम, फ्रेम और पिलर एंड द रैम। अब हमें इस जो वर्कपीस माउंट करना है वो टेबल पर माउंट करना है, तो टेबल को हमें क्रॉस में मूवमेंट देना है, इसलिए यहाँ पे एक क्रॉस रेल दी जाती है जिसकी वजह से ये जो टेबल है वो क्रॉस में मूवमेंट कर पाती है। इस टेबल के ऊपर हम वाइस माउंट करके यहाँ पे वर्कपीस होल्ड करा सकते हैं। ठीक है ना, सो बेस, बॉडी, क्रॉस रेल, नाउ द रैम। रैम के आगे यहाँ पे टूल हेड माउंट है और उस टूल हेड में यहाँ पे इन्वर्टेड पोजीशन में ये हमने टूल यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है ना, सो रैम एंड लास्ट इज द टूल हेड। इट इंक्लूड्स टूल पोस्ट, टूल स्लाइड एंड क्लैपर बॉक्स ब्लॉक। ये पूरा का पूरा ये जो बॉक्स रहता है क्लैपर बॉक्स रहता है।
ठीक है ना। इसमें ये टूल को ऊपर नीचे करने के लिए स्लाइड दी गई है, जिससे हम डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आगे की तरफ टूल माउंट है इस टूल पोस्ट में, ठीक है। So these are important parts of the shaper machine. You can see since this movement of the tool is in horizontal position, that's why it is considered as a horizontal shaper also. और जैसा मैंने शुरुआत में बोला है, there are certain shaping machines which is having this reciprocating motion in vertical up and down, ठीक है। Those machines are known as vertical shaper, या उनका दूसरा नाम होता है slaughter और slotting machines, स्लॉटर और स्लॉटिंग मशीन, SLOTTING, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक 3 डायमेंशनल इमेज दिखाता हूँ, तो आपको एक बच्चा आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज अ शेपर मशीन। हियर यू कैन सी दिस बेस के ऊपर ये कॉलम है, फ्रेम है या बॉडी है। इसकी जो टॉप सरफेस रहती है, यहाँ पे हम स्लाइड वे प्रोवाइड करते हैं, उन स्लाइड वेज के ऊपर ये जो रैम है ये रेसिप्रोकेट कर पाता है, ठीक है। रैम के आगे की तरफ यहाँ पे टूल हेड असेंबली है कंप्लीट, जिसमें ये टूल पोस्ट है, ठीक है ना। और इसको क्लैपर बॉक्स बोलते हैं। इसमें अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि जब ये आगे की तरफ जाता है तो ये रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करता है, और जब पीछे मुड़ता है या रिटर्न स्ट्रोक में जाता है तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड हो जाता है, मतलब ऊपर उठ सकता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि यदि टूल मशीन सरफेस के ऊपर से आ रहा हो तो उसमें कोई डैमेज ना हो, सरफेस में अच्छी बनी रहे, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कटिंग टूल माउंट कर सकते हैं, उससे मशीनिंग करा सकते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज क्रॉस रेल, जो कि इसके यहाँ पे फ्रंट पे यहाँ पे माउंट होती है, और इस क्रॉस रेल के थ्रू ये टेबल असेंबली यहाँ पे क्रॉस में मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हो, टेबल के ऊपर हम वाइस माउंट कर सकते हैं, उस वाइस में वर्क पीस को होल्ड करा सकते हैं, ठीक है। So I think now you will be having idea about various parts of a shaping machine and how shaping is done, because you have seen the videos also. तो यहाँ पे यदि आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वो जो डायग्राम में सर ये जो स्ट्रोक करके कुछ था सर, मतलब उससे क्या होता है सर, उसका जो कितना आगे पीछे होगा? कहाँ? यहाँ पे स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग ना, मोशन करते हैं। हाँ। देखो यहाँ पे वर्क पीस लगेगा। अब ये टेबल की डायमेंशन हो सकता है 2 फीट हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हम इस टूल को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मूव करें। हमारे पास एक छोटा वर्क पीस है, छोटे वर्क पीस को हम यहाँ माउंट कर सकते हैं, बीच में माउंट कर सकते हैं, आगे की तरफ माउंट कर सकते हैं। तो वर्क पीस यदि यहाँ पे माउंटेड है और इतना छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बस रेसिप्रोकेट करा लेंगे। यदि वर्क पीस यहाँ पे माउंटेड है तो हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि टूल यहाँ से यहाँ के बीच में ही यहाँ पे मूव हो, मतलब उसको एंटायर टेबल पर मूव कराने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि यदि आप इसको एंटायर टेबल पर मूव कराओगे, वर्क पीस कम लेंथ का है, तो उसके इसमें बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें चाहते हैं कि जो वर्क पीस की लेंथ है वो उस टेबल पर कहीं पर भी माउंटेड हो, उसको हम सिर्फ वर्क पीस के अक्रॉस ही यहाँ पे आसपास मूव कराते रहे, ठीक है। और कोई डाउट? यहाँ पे आप जैसा हमने फिगर में देखा है, ये एक्चुअली एनग्रेविशंस होते हैं, ठीक है। ये हल्का सा यहाँ पे स्विवेल हो सकता है लेफ्ट एंड राइट लाइक दैट। और कोई डाउट? आगे चलते हैं अपन। नाउ लाइक शेपर मशीन देयर इज अनदर मशीन विच इज नोन एज प्लेनर और प्लेनिंग मशीन। जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि शेपिंग ऑपरेशन इज द मेटल कटिंग ऑपरेशन इन विच अ फ्लैट सरफेस विच मे बी इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर सरफेस कैन बी मेड और कंटूर्ड सरफेसेस कैन आल्सो बी मेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी मशीन है जो बिल्कुल शेपिंग मशीन जैसी होती है, और वो भी फ्लैट सरफेसेस को प्रोड्यूस करने के काम में आती है। बट शेपिंग में और प्लेनिंग में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है कि जो शेपिंग मशीन रहती है उसमें चूंकि टूल का मूवमेंट लिमिटेड होता है, ये इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और हमारा वर्कपीस यदि बहुत लंबा हो तो उस केस में हम टूल को इतना ज़्यादा रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वर्कपीस है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन दी जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ प्लेनिंग मशीन
It is the workpiece which is mounted on the table and it is given reciprocating motion. ठीक है ना? और उसके ऊपर जो लगा हुआ टूल होता है उसकी क्रॉस में मोशन होती है. मतलब फीड मोशन इज गिवन बाय द कटिंग टूल and primary motion or cutting motion is given by the workpiece. So this is the basic difference between a shapper and a planer. Difference between the process of shaping and planing is that in shaping the tool is reciprocating and the workpiece is fed into the cutting tool, while in planing the workpiece is reciprocating and tool is fed in the workpiece. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शेपिंग में कटिंग टूल की रेसिप्रोकेटिंग मोशन है जो कि प्राइमरी मोशन है और वर्कपीस की फीड मोशन है और क्रॉस में मूवमेंट किया जाएगा. प्लेनिंग मशीन में क्या होता है, वर्कपीस के पास रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है जिसको अपन प्राइमरी मोशन बोलते हैं, और जो टूल रहता है उसके पास क्रॉस मोशन होती है जिसको अपन फीड मोशन भी बोलते हैं. But in both these cases, whether it is shaping or planing, the cutting is intermittent in all these processes because in the relative reciprocating motion, the tool cuts only in forward working stroke, followed by the idle return stroke. ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शिपिंग मशीन और शेपर एंड अ प्लेनिंग मशीन और प्लानर. ठीक, यहाँ पे कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हो. सर एक बार डिफरेंस और सर एक बार बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए. देखो ये लिखा हुआ है शेपिंग मशीन में, फिर से अपन वापस में चलते हैं. रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसकी है, वर्कपीस की, कटिंग टूल की है? वर्क पीस की. सॉरी, कटिंग कटिंग. हाँ हाँ हाँ, इस पे ध्यान दो. ये जो रैम है जिसके आगे टूल लगेगा इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी और ये प्राइमरी मोशन है, कटिंग मोशन होगी. ठीक है, अब एक स्ट्रोक ही पूरा करेगा, टूल को हमें फीड करना है तो टूल को क्रॉस डायरेक्शन मूव किया जाएगा. ठीक है, तो फीड मोशन विल बी विद द वर्कपीस. होता क्या है, यदि वर्कपीस की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में इतना ज्यादा कटिंग स्ट्रोक लेंथ रैम के थ्रू नहीं प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो उस केस में हम उल्टा काम करते हैं. काम ये करते हैं कि नीचे जो टेबल है जिसके ऊपर वर्कपीस माउंट किया जाना है उस वर्कपीस को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देते हैं. टूल अपनी जगह यहाँ पे फिक्स होता है, मूव नहीं करता है. टूल सिर्फ क्रॉस में मूवमेंट करेगा. मतलब क्या होगा कि एक बार जब कटिंग हो गई सिंगल स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में, तो पीछे जाने के लिए क्रॉस में मूव करेगा जिसको अपन फीड मोशन देंगे. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है शेपर और प्लेनर में, कि प्लेनर में वर्कपीस के पास रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, कटिंग मोशन होती है, और टूल के पास क्रॉस मोशन होती है. अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कुछ अलग प्रकार का होता है. यू कैन सी द इमेज ऑन इंटरनेट ऑल्सो. ठीक है, और कोई डाउट? नो सर, ओके. ठीक है, नाउ दीज आर parts of the shipper machine: base, body, cross rail, ram and tool head. Base is a heavy cast iron casting which is fixed to the shop floor. It supports the body frame and the entire load of the machine. Base absorbs and withstands vibrations and other forces which are likely to be induced during the shipping operation. जब हम शिपिंग ऑपरेशन करेंगे तो वाइब्रेशंस आएंगे, तो इसका जो बेस रहता है उन वाइब्रेशंस को लेके बाद में ग्राउंड में ट्रांसमिट कर देता है. बॉडी, प्लर, फ्रेम और कॉलम, इस चारों एक ही नाम है. It is mounted on the base and houses the drive mechanism compressing the main drive. ठीक है, the gearbox and the quick return mechanism for the ram movement. The top of the body provides guideways for the ram and its front provides the guideways for the cross rail. ठीक है, इसमें दो प्रकार की क्रॉस स्लाइड होती हैं. सामने की तरफ इस क्रॉस स्लाइड को मूव करने के लिए, क्रॉस रेल को मूव करने के लिए बेज है, उसी प्रकार से टॉप में रैम को मूव करने के लिए यहाँ पे बेज है. ठीक, देन कम्स द क्रॉस रेल mounted on the front of the body frame and can be moved up and down. ठीक है ना, ये क्रॉस रेल होती है, आगे की तरफ रहती है जिससे कि हम टेबल को क्रॉस में यहाँ पे मूव कर सकें. ठीक, इसको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है यदि हमें डेप्थ ऑफ कट वर्कपीस के थ्रू देनी हो तो. The vertical movement of the cross roll permits jobs of different heights to be accommodated below the tool. ठीक है, sliding along the cross rail is a saddle which carries the work table. Now comes the ram and tool head. Ram is driven back and forth in its slides by the slotted link mechanism. ये एक नाम लिखा गया है. There are 3 types of mechanism used for quick return mechanism. ठीक, वो नाम अपन आगे देखेंगे, लेकिन ये
वहां भी हाउस रहती है। द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ रैम इज कॉल्ड स्ट्रोक एंड इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वर्कपीस टू मशीन। जैसे मैंने पहले बोला कि हम इस टेबल पे कहाँ पे वर्कपीस को माउंट करने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने मोशन को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो कटिंग टूल हो वो इस पॉइंट से आके इस पॉइंट तक आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है। ठीक, सो दीज आर बेसिक डिफरेंस एंड द पार्ट्स ऑफ अ शेपिंग मशीन। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर ये क्या बोलते हैं जो क्रॉस रेल है सर, ये उसमें होगा ना प्लेनिंग मशीन में? नहीं, मशीन में लगा, मशीन के आगे फ्रंट में लगा होता है ये वेज है ये एक प्रकार का। जब दोनों में हम रहता जब है? यहाँ दोनों मतलब मतलब ये शेप प्लेनर में, प्लेनिंग, हाँ नहीं प्लेनर और प्लेनर में, शेपर दोनों में? प्लेनर में ये नहीं रहेगा। चलो मैं तुम्हें प्लेनर का फिगर दिखाता हूँ मैं तुमको भी। कोई सा भी फिगर ले लो, ये वाला है, ठीक है ना। इसमें हमें दिख रहा है ये टेबल है, और यहाँ पे अरेंजमेंट क्या किया गया है कि ये रेसिप्रोकेट हो सकती है, ठीक है ना। मतलब इसमें भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगी होगी, लेकिन इसमें ये टेबल रेसिप्रोकेट करेगी, उसकी वजह से वर्कपीस रेसिप्रोकेट करेगा। टूल कहाँ पे होगा, अपना यहाँ पे होगा। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया जाता है, कई बार हम एक से अधिक टूल यहाँ पे माउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो क्रॉस मोशन किसकी होनी है, इसकी होनी है। अब वर्कपीस की क्रॉस मोशन नहीं होनी है यहाँ पे, तो क्रॉस ट्रेल इसमें यहाँ पे दी जाती है, ठीक है ना। और वो अलग ढंग से दी जाती है किसको मूव करने के लिए, ये यहाँ पे टूल को मूव करने के लिए इसकी इलेक्ट्रिकल मोटर है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। आप ये फिगर देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो, जो भी आप देखें, लेकिन वही चीज है यहाँ पे। टेबल रेसिप्रोकेट करेगी और जो कटिंग टूल रहेगा वो क्रॉस मोशन होगा, इसकी क्रॉस मोशन होगी। अच्छा, मतलब क्रॉस में जिसपे वो मोशन होता है उसको क्रॉस रेल बोलते हैं? क्रॉस रेल, हाँ। अच्छा, और इसमें जो है इसमें टेबल होती है क्रॉस रेल, इसलिए टेबल पे रहता नहीं, ये क्रॉस रेल ही है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्रॉस है। रेल है। और उस पे टेबल को हम क्रॉस में मूव करते हैं, क्यों करना है, क्योंकि हमें हम्म, फीड देना है। किसको फीड देना है, फिर देना वर्कपीस को फीड देना है। वर्कपीस। वर्कपीस लगा है टेबल के ऊपर, तो इस पूरी यस सर, पूरी की पूरी असेंबली को हमें क्रॉस में मूव करना पड़ता है इन रेल्स के थ्रू। ये जो देख रहे हैं दो, एक ये और एक ये, यस सर, यस सर, समझ गया सर, समझ गया। ठीक है। और कोई डाउट यस सर। नो सर। भाई? एक ही मिनट बचा है अपने पास में, ज्यादा नहीं बचा अपने पास। नहीं तो नहीं, हो यदि गया सर, किसी समझ को, में। हाँ, तो यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल से पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस यस सर। डाल दीजिए, बाकी जो इसका ऑपरेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यस सर। ओके, थैंक यू मैं सर। मीटिंग बंद करता हूँ। ओके बेटा।